أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. معزز اور محترم قابل احترام سامعین، آج ہم اور آپ ایک خاص مقصد کے تحت یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، یہاں پر جمع ہوئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مالک حقیقی کو کس طریقے سے راضی کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر رحمت بارہ کا نزول فرمائے. عزیز ساتھیوں، دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا دعا جو ہے یہ مومن کے لیے ہتھیار اور اسلحہ کا کام کرتا ہے. جس طریقے سے میدان جنگ میں اسلحے کے ذریعہ حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح سے مصائب و آلام سے یہ دعائیں ہماری حفاظت کرتی ہیں. تیسری جگہ ارشاد فرمایا دعا جو ہے یہ عین عبادت ہے. چوتھی جگہ ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے وہ تقدیروں کو ٹال دیتی ہے. دعا تعلق مع اللہ کا ذریعہ ہے. دعا رضا الہی کا سبب اور ذریعہ ہے. اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے. میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے. میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے. یا الہی میرا اتنا تو کہاں ہو جائے، یا الہی میرا اتنا تو کہاں ہو جائے، تیغ جو سوکھ گیا ہے وہ ہرا ہو جائے. آج ہمارے معاشرے کی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. بتائیے، نماز استسقاء کا اعلان کیا گیا، لوگ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، لیکن ابھی تک گھروں سے آنے کی توفیق نہیں ہوئی. نہ حسن طلب ہے اور نہ ہی اللہ سے لو لگانے کا جذبہ اور شوق ہے. نہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، نہ اللہ کے رسول سے محبت ہے. بس ہم نام کے مسلمان ہیں. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. افسوس کی بات ہے، صد افسوس ہے. پرانے زمانے میں جب لوگ استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو عورتیں اپنے ساتھ تمبو لے جاتی تھیں، چاول لے جاتی تھیں، کیونکہ ان کو 100% امید ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کرے گا. اور آج حالت یہ ہے کہ آج ہم خود نماز کے لیے نہیں پہنچے ہوئے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. آج ہمارا معاشرہ اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، رشوت خوری کے اعتبار سے، قمار بازی کے اعتبار سے، زناکاری اور فحاشی کے اعتبار سے، بے حیائی اور بے پردگی کے اعتبار سے ہماری مائیں اور بہنیں ہلاکت کے دہانے پر قدم رکھ چکی ہیں. حیا ایمان کا شعبہ ہے جو آج ہماری زندگیوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. حیا کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے. جب تک ہمارے اندر حیا نہیں آئے گی، جب تک ہمارے اندر غیرت نہیں آئے گی، جب تک ہمارے اندر خودداری نہیں آئے گی، جب تک ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی فکر نہیں کریں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم ہمیشہ پریشان رہیں گے. ہماری مائیں اور بہنیں بے حیائی اور بے پردگی کا ننگا ناچ کر رہی ہیں. عزیز ساتھیوں، یہ بارش کی رکاوٹ کا سب سے اہم ذریعہ ہے. دلی میں ایک مرتبہ قحط پڑا. تمام علماء، صلحاء، عورتیں، بچے، جانور سب میدان میں آ گئے اور سب لوگ صبح سے شام تک دعا کی. کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی. ایک نوجوان اپنی اونٹنی کے ساتھ گزرا. اس اونٹنی پر اس کی بوڑھی ماں تھی. نوجوان نے ماجرا پوچھا کہ آخر اتنا ازدحام کیوں ہے، اتنی بھیڑ کیوں ہے. لوگوں نے بتایا کہ قحط کا دور ہے، جانور پریشان ہیں، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. اس نوجوان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور بارش نازل ہو گئی.
तमाम उलमाए किराम हैरानो परेशान कि हम दुआ कर रहे हैं, सुबह से शाम हो गई, किसी की दुआ अब तक कबूल नहीं हुई। आखिर इस नौजवान ने क्या दुआ की? लोग उसके पीछे लग गए और पूछा कि क्या दुआ की? तो उस नौजवान ने कहा कि इस ऊँटनी पर जो कजावा बंधा हुआ है, जो हौदज बंधा हुआ है, उसमें मेरी बूढ़ी माँ है, जिसको आज तक किसी गैर महरम ने नहीं देखा, किसी गैर शख्स की निगाह मेरी वालिदा पर आज तक नहीं पड़ी। मैंने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ऐसी बाहया औरत, ऐसी पाकदामन औरत जो मेरी वालिदा है, कजावे में बैठी हुई है, जिसको आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, ऐ बारगाह इलाहा मेरी दुआ को इसके सदके तुफैल में, इसके पाकदामनी के सदके तुफैल में कबूल फरमा। बारिश नाजिल हो गई। तो हया का होना बहुत जरूरी है। एक मोमिन का खुददार होना, खुद भी हया करे, खुद भी बाहया हो और अपनी औरतों से, अपने घर की मस्तूरात से बाहया बनने की तंबीह और तलकीन करें। बेहयाई ये ओबाले जान, किसी की गीबत ना करें, किसी की बुराई ना करें, अल्लाह से रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने माफी मांगे। मकसद यहां पर इकट्ठा होने का यह है कि हम अल्लाह के सामने रोएं, निदामत की आश्क बहाएं, ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमको हर तरह की नेमत से आरास्ता करे, पैरास्ता करे, मुज़य्यन करे। अल्लाह ताला खुद दुआ की तलकीन कर रहा है कि मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं। और जो लोग अल्लाह के हुजूर रोते नहीं हैं, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अल्लाह के हुजूर माफी नहीं मांगते, अल्लाह के सामने दुआ नहीं करते, आजिज़ी और इंकिसारी का जज्बा जिनके अंदर नहीं, अल्लाह ताला उस पर गजबनाक होता है। हम यहाँ बैठे हुए हैं तो सिद्क दिल से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, गुनाहों पर नादिम हो, शर्मिंदा हो और आज इस मजमे में हम तौबा करें कि मौत तक इंशाअल्लाह ताला न झूठ बोलेंगे, न किसी की गीबत करेंगे, ज़कात का माल पूरा पूरा अदा करेंगे, कारोबार में झूठ से, फरेब से, मकर से, धोखा से बचने की कोशिश करेंगे, अपनी औरतों को बाहया बनाएंगे, खुद शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और दूसरों को शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, अहकाम शरिया की पाबंदी करेंगे, अपने दिल से बुग़्ज़, हसद, कीना, अदावत और दुश्मनी को निकाल फेंकेंगे। जब इस जज्बे के साथ, इस शौक के साथ अल्लाह के सामने हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला हमारी दुआओं को जरूर कबूल करेगा। वो गुनहगारों की दुआ को कबूल करता है। हाथ मायूस नहीं होंगे, उठाकर देखो। बस शर्त यह है कि खुलूसे दिल से पुकारा जाए, खुलूसे दिल से पुकारे अगर कोई उसको, हर एक नाम ही फिर उसका इस्म आज़म है। अजीज साथियों, ये हमेशा हमेशा की जिंदगी नहीं है, एक मुख्तसर जिंदगी हमें दी गई है। असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले, समझदार वो है जो मरने से पहले उस जिंदगी की तैयारी करे। इस जिंदगी के अमाल से हमारी वो जिंदगी बनेगी, इस जिंदगी के कारनामे से हमारी वो जिंदगी संवरेगी। हमें कब्र में जाना है, आलमे बरज़ख में जाना है। हमसे 3 सवाल किया जाएगा। मन रब्बुका, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस शख्स के सिलसिले में क्या कहते हो? अगर आपने इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी, अपने दिल के अंदर किसी से बुग़्ज़ नहीं रखा, किसी से हसद नहीं रखा, किसी से कीना नहीं रखा, किसी से अदावत नहीं रखा, किसी की जमीन नहीं हड़पी, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, अहकाम शरिया के पाबंद रहे, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे, तो फौरन जवाब दे देंगे। और अगर आपने कोताही की है, कमी की है, पूरी जिंदगी खुराफात में, बदकारी में, ज़िनाकारी में, अय्याशी में, सुस्ती और काहिली में गुजारी है, तो आप कह देंगे हाँ हाँ लादरी, सजा दी जाएगी, फिर हश्र के मैदान में भी सजा दी जाएगी। ऐलान होगा ये घड़ी महशर की है, तू अर्श-ए महशर में है, ये घड़ी महशर की है, तू अर्श-ए महशर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। अफसोस की बात है, ऐसे वक्त में अगर हमसे पूछा जाएगा कि दुनिया में कितने वक्त जिंदगी गुजारे, आप यहाँ 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जिंदगी गुजार के जाते हैं, बड़े बड़े महल्लात तामीर करते हैं, सैकड़ों बीघा जमीन खरीदते हैं, वहां आप कहेंगे
एक सुबह गुजार कर आया हूं दुनिया में या एक शाम गुजार कर आया हूं। आखिरत की जिंदगी, आखिरत के मुकाबिल में दुनिया की जिंदगी की ये हैसियत है जिसके पीछे हम और आप तबाह बर्बाद हो रहे हैं। सारी मस्जिदों में ऐलान कराया गया, लेकिन तौफीक नहीं हुई कि यहां पर इकट्ठा हो, अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, आजिजी और इंकिसारी की मिसाल पेश करें, ताकि अल्लाह ताला हम पर बारान रहमत का नुज़ूल फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक मरतबा कहत पड़ा। हज़रत मूसा वक्त के नबी हैं, दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह से शिकायत की और कहा, फरियाद की, कहा अल्लाह बारिश क्यों नहीं नाजिल हो रही है? कहा इस पूरे मजमे में एक शख्स है जो बड़ा नाफरमान है। हम तो पूरे नाफरमान हैं। इस मजमे में अभी मैं पूछ लूं, कितने शख्स ऐसे हैं जो गीबत से बचे हुए हैं? कितने शख्स ऐसे हैं जो हसद से बचे हुए हैं? कितने शख्स ऐसे हैं जो जुल्म और ज्यादती से बचे हुए हैं? कितने शख्स ऐसे हैं जो तहज्जुद गुजार हैं? कितने शख्स ऐसे हैं जो अहकाम शरिया के पाबंद है और नमाजों की पाबंदी करते हैं? कितने शख्स ऐसे हैं जिनको पांचों कलमा याद है? हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मूसा, तुम्हारे मजमे में एक शख्स ऐसा है जो तकरीबन 40 साल से मेरी नाफरमानी करता है, उसकी वजह से मैं दुआ कबूल नहीं कर रहा हूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि वो कौन शख्स है जो गुनहगार है, जिसने 40 साल तक लोगों की गीबतें की, लोगों की बुराइयां की, लोगों की को तकलीफ पहुंचाई, शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, वो इस मजमे से चला जाए। वो शख्स बड़ा नादिम हुआ, बड़ा शर्मिंदा हुआ। अल्लाह के हुजूर उसने हाथ उठाया और दुआ की कि अल्लाह 40 साल तक तूने मेरे गुनाहों की पर्दा पोशी की, 40 साल तक ऐ मेरे मालिक तूने मेरे गुनाहों को छुपाए रखा। अगर आज मैं इस मजमे से खड़ा हो गया तो मेरा राज फाश हो जाएगा। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, सिद्ध दिल से, आजिजी से, इंकिसारी से दुआ करता हूं आपके हुजूर कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा। इतना कहना था कि रहमत की बारिश नाजिल होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मजमे से कोई शख्स उठा नहीं, किसके तुफैल में आपने बारिश की? कहा वही जिसके वजह से बारिश मैं नहीं कर रहा था, उसी की वजह से मैंने बारिश को नाजिल किया। तो हमारे आने का मकसद यह है कि हम अल्लाह के हुजूर दुआ करें, गुनाहों से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने दिल को लोगों के लिए साफ रखें और अल्लाह के हुजूर रोए, गिड़गिड़ाए, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला जरूर भी जरूर हमारी दुआओं को कबूल करेगा। नमाज इस्तिस्क़ा का तरीका यह है कि आदमी पहले 3 दिन रोजा रखे, 3 दिन रोजा रखे, सदका और खैरात करे, गुनाहों की माफी मांगे, अपना दिल साफ करे। 3 दिन रोजा रखने के बाद अगर बारिश न नाजिल हो, फिर उसके बाद नमाज इस्तिस्क़ा के लिए एक वक्त मुतय्यन करे। पहले दिन नमाज पढ़े, बारिश न नाजिल हो, फिर दूसरे दिन नमाज पढ़े, फिर बारिश न नाजिल हो, फिर तीसरे दिन नमाज पढ़े। कम से कम 3 दिन जो है लगातार नमाज पढ़ना चाहिए। ये तरीका है। इमाम साहब बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद खुतबा दिया जाएगा, खुतबे के बाद दुआ होगी। इमाम साहब खड़े होकर दुआ करेंगे, हम सब बैठकर इनकी दुआ पर आमीन करेंगे। हम गुनाहों पर नादिम हों, गुनाहों पर शर्मिंदा हों और कोशिश करें उल्टे हाथ से जो है दुआ करें। वो जो है ये नेक फाल समझा जाता है कि अल्लाह ताला हमारे मौसम को भी तब्दील कर दे, जिस तरह हमने अपने हाथ की हैत को तब्दील किया।